So we'll begin the class. Today my class is on the nature versus nurture essays. The other day while we were doing speaking, I told you that this is, there was some question related to this topic. So I told you all that these essays are in the guesswork. So I'm going to discuss with them, discuss with you very slowly these essays, because in my book I had written them quite a few years back and they were quite lengthy. I've modified them a bit, rewritten. So we'll be first doing the ideas, the type of essays that come under this category, the ideas for them, and then how you can handle them, right? So the Yes, ma'am. first essay that is in front of you, this is: some scientists believe that studying the behavior of 3-year-old children can tell which children would grow up to be criminals. तो ये कह रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि 3 साल के बच्चे का बिहेवियर स्टडी करने से पता चल जाएगा बड़े होके कौन सा बच्चा क्रिमिनल बनेगा. मतलब 3 साल के बच्चे के ही बिहेवियर से पता चल जाएगा बड़ा होके वो क्रिमिनल बनेगा. फिर आपसे जो क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है, to what extent in your opinion is crime a product of human nature, or is it possible to stop children from growing up to be criminals? Okay. So, can you tell me, Bindu, which category of essays this is? Direct question. The direct question essay. For those who have joined today, मैम सबको म्यूट कर दो. for those who have joined today, there are 3 types of essays. Within a minute, I'll be telling you: opinion, discuss, and problem solution. And under the category of problem solution, we have this direct question essay also, जिसमें सीधा सीधा एक question पूछा हुआ है, आपको उसका जवाब देना है. Okay. So first, it is believed, some scientists believe, you can say in the introduction, how you can write the introduction. Naman, can you try writing the introduction? Paraphrase the first sentence. Some scientists Okay, ma'am. believe. Some scientists believe. Yeah, just change the structure. The very easy method which we have taught you, change the structure of the topic so that question, so that it remains, meaning remains the same. And Sorry, ma'am. Hello. You had muted me. Yes, ma'am. वो entry ma'am enter करवा रहा था ma'am उसमें. अच्छा, कोई बात Sorry, ma'am. कोई नहीं. So how would you paraphrase the first sentence? Many scientists believe इसको in. पता है क्या करो? It is believed by. Okay, ma'am. का many नहीं करो. It is believed by some scientists that, या some that भी कर दोगे चलेगा. It is believed by some that. It is believed by some that scientists. नहीं, scientist अब छोड़ दो. Studying का synonym क्या लगेगा? Observing. Observing. Very good. Yes, ma'am. Observing. Observing the what? Behavior of 3-year-old children. Yes, ma'am. Observing the behavior of children. अब behavior का कुछ लगा सकते हो? Observing the way 3-year-old children behave. ऐसे कर दो. So observing the way 3-year-old. Change a word. Okay? Yes, ma'am. Attitude is suitable or not? What? Whether attitude. Attitude तो नहीं suitable. Attitude is different. Okay? So it is believed by some that by studying how 3-year-old children, by observing how 3-year-old children behave, it can be predicted whether they would turn out to be criminals. Okay? In future. तो ठीक है, ऐसे थोड़ा paraphrasing हो गई. अब आपसे पूछा गया है, to what extent in your opinion, आपके ओपिनियन में किस हद तक क्राइम जो है, जो क्राइम है वो ह्यूमन नेचर का प्रोडक्ट है, मतलब जीन्स में ही आता है कि कोई क्रिमिनल है तो उसके बच्चे क्रिमिनल ही होंगे. आपके हिसाब से किस हद तक हमारा जो बिहेवियर है दैट इज
based on the genes we inherit from our parents. Okay, or is it possible to, ये क्वेश्चन है. अब इसके लिए आप क्या बनाओगे सेंटेंस? सेकंड सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस सारे न्यू बच्चों को बनाना आ गया. इंट्रोडक्शन फर्स्ट सेंटेंस. पैराफ्रेजिंग. Yes, ma'am. पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन. एग्जामिनर को लगे कि आपने थोड़ा डिफरेंट करके लिखा है, मीनिंग चेंज ना हो, वे Yes. डिफरेंट हो जाए, Yes, ma'am. ही निकले, वे डिफरेंट हो जाए लिखने का. ठीक है, और जिस वर्ड का सिनोनिम नहीं सूझ रहा ना, गलत लगाने से बेटर है वही वर्ड लिख देना. डोंट वरी. ठीक है. Okay. हाँ, और फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस विल बी योर थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? इट टेल्स द एग्जामिनर what you are going to write in the essay. Okay, so thesis statement लिखो अब. Who will try? Are you there? हेलो Yes. मैम, इसमें थीसिस स्टेटमेंट में हम ऐसा लिख सकते हैं, माय प्रेफरेंस इज जस्टिफाई फर्दर, या ऐसा माय इंक्लिनेशन इज जस्टिफाई फर्दर, ऐसा कुछ. Inclination is justified. आप justified क्यों लिख रहे हो टॉपिक इंट्रोडक्शन में? आप जस्टिफाई तो आगे करोगे ना, अगर लिखना भी है तो फिर ऐसा मत लिखो ना. अपनी बस Yes, ma'am. इंक्लिनेशन लिखो. आप क्या सोचते हो वो लिखो. हाँ हाँ, माय इंक्लिनेशन. अपना व्यू लिखो. ठीक है. मैम. तो आपने क्या स्टेटमेंट बनानी है? क्या बना सकते हो? क्योंकि ये स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सारा एसे इस स्टेटमेंट के ऊपर धरा है. Your whole essay is based on this statement because what you write here you are going to support in your essay. अगर आप यहाँ लिख देते हो कि पूरा ह्यूमन नेचर जीन्स पे है, तो आपका essay उसी वे में होगा कि नेचर इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट. अगर आप लिखते हो कि पॉसिबल है बच्चों को प्रिवेंट करना कि बड़े होके ना बने क्रिमिनल, तो आप लिखोगे कि परवरिश पे डिपेंड करता है, नर्चर पे डिपेंड करता है. नेचर वर्सेस नर्चर. नेचर इज जीन्स, नर्चर इज परवरिश एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. ठीक है. मैम वाइल स्टेटमेंट बना सकते हैं. हाँ, वाइल स्टेटमेंट बना सकते हो ना. वाइल स्टेटमेंट बना सकते हो. ठीक है, ट्राई करो दिवांगिनी. While human genes have their own importance and effect on. इतना लंबा मत खींचो. Okay. हाँ, तब गड़बड़ हो जाएगी. मैम हाँ, मैम यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट करके वाइल अदर्स ओपाइन करके डाल सकते हैं हम वाइल लोग. अदर्स तो बेटे ब्लंडर हो जाएगा. अदर्स कहाँ पे है? यहाँ पे अदर्स है ही नहीं. ओके. Excuse me, ma'am. आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस हद तक जीन्स रिस्पॉन्सिबल है और क्या ये पॉसिबल है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप उसका जवाब दो बस. अदर्स है नहीं इसमें. Ma'am, we can write it like this, that while genetic inheritance plays a very important role. Hello? Ma'am, Yes, can you hear yes. me? Yes. Yes. Yeah, so we can write it like this, while genetic inheritance plays a very important role, but we cannot neglect the upbringing of a child or the vital importance of आपका जो parents. sentence है ना बिना, एक तो वाइल जी, वाले में बट नहीं आता, तो ये ध्यान Okay. रखना, ये ग्रामेटिकल जी. एरर है. दूसरा, आपने प्राइमरी इंपॉर्टेंट रोल कर दिया जीन्स का, तो आप फिर अपने ऐसे में ना जीन्स को ज्यादा लिखोगे कि वो ज्यादा डिटर्मिनेंट है. ठीक है. अच्छा, okay, अगर आप okay. जीन्स को कम डिटर्मिनेंट लिख रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट जी, रोल जी. ना करो, ऐसे बोलो कि हाँ, वाइल हाँ. जीन्स डू प्ले अ रोल, Genes I also believe the play primary important determinant is nurture role as or the well way as Yes. children are brought up. तो फिर आप एक पैरा छोटा सा जीन्स के फेवर में लिख के बाकी लिख सकते हो कि किसी को भी अच्छा सुधारा जा सकता है. Yes, correct. ठीक है. That is तो true. आप, Okay. मैंने वो स्टेटमेंट यहाँ लिखी भी हुई है. I believe that while genes do play a role, the primary determinant is nurture. जो कि what is nurture, मैंने हाइफन डाल के लिख दिया, education and bringing up. ओके. तो ये मैंने ऐसे ये बना के दिया आपको वाइल स्टेटमेंट. वाइल स्टेटमेंट आपको अब समझ आ गया. वाइल स्टेटमेंट से ऐसे को हैंडल करना इजी हो जाता है, पर वाइल स्टेटमेंट को लंबा मत खींचना दिवांगनी, जो आप कर रहे थे. Okay, ma'am. उसको ऐसे मत खींचना लंबा. सेंटेंसेस उतने ही रखो जितने एक नजर में आपको उसका हेड और टेल दिख जाए, फिर आपके अच्छे बैंड आएंगे. ये बात मैं पक्की बता रही हूँ आपको. Okay, ma'am. हाँ. एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी 15 वर्ड्स के सेंटेंस में बन जाता है. तो ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों को कि लंबे लंबे सेंटेंस ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं. वो सुपर कॉम्प्लेक्स होते हैं
और वो बैंड को नीचे खींचते हैं वेट लगाओ जैसे, ठीक है, और सुपर कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं लिखने, ठीक है। मैम सुनिए ना हाँ, मैम, बोलो हाँ बोलो, हाँ जी, मुझे हाँ जी। तो मुझको क्वेश्चन डाउट ऐसे है इसके अंदर। आप अभी बोल रहे थे ना कि अगर तुम्हारे किसी सेंटेंस में अगर वाइल से शुरुआत होती है तो उसमें अपन बट नहीं लिख सकते। हाँ, मैम but आप ऐसे कुछ मुझको वो बता सकते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस wherein this does not go with this और this does not go with this, जैसे वाइल के साथ बट नहीं जाएगा, और भी कोई ऐसे मैंने इकट्ठे नहीं करे हुए, पर अब मैं करने शुरू कर देती हूँ because this is, you know, this is a part of me growing up. मेरे को भी ऐसे बताना, जैसे इसके साथ ये नहीं लगता, इसके हाँ, you are right, I should make a note somewhere and I can put up that you know 10-20 points of grammar you should not do mistakes about, common mistakes like नहीं that. तो Ma'am, only reason also you said with although we cannot use but. हाँ, although के साथ भी but नहीं आता। अच्छा, ऑल्दो के साथ बट नहीं वाइल के साथ, बिकॉज मैम जैसे अभी आप इतने सालों से टीच कर रहे हो, सो यू रियली नो कि कौन सी चीज किसके साथ नहीं जा रही, मतलब वो स्पाइनल लेवल पे है। हाँ, पर मैंने But- ऐसे ना नोट्स नहीं बनाया वैसे हाँ। ना मेरे पास कॉमन मिस्टेक्स एट आइल्स 30 कॉमन मिस्टेक्स, तो मेरी कैम्ब्रिज की बुक है, उसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि वो मैं पढ़ाती रही हूँ 30 कॉमन मिस्टेक्स एट आइल्स। तो मैं ना उसके साथ उसकी एक्सरसाइजेस भी हैं पीछे, मतलब 3 मिस्टेक्स एक दिन में पढ़ाती थी, 10 दिन में मैंने वो क्लासेस कवर करती थी। 3 mistakes in one day and then exercise based on that with the answers. तो वो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि वो मैं आपको करवा दूँ एक-एक, ठीक है? Yes, Ma'am, ma'am. really that would be really. Yes, ma'am. और उसकी एक्सरसाइज है पीछे, पर वो चेक करना मेरा काम नहीं है, आप में से किसी को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, आंसर Okay, दे ma'am, दूंगी, we are ready. बच्चे आपको भेजेंगे, ठीक है? Yes, ma'am, that's good. चलो ये ठीक है, फिर डन है, मैंने नहीं चेक करनी, ठीक है? मैम ये नर्चर और नेचर का प्लीज एक बार डिफरेंस थोड़ा सा बता दो, अभी आप बताया था फटाफट। नर्चर इज परवरिश, ब्रिंगिंग अप, एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेचर इज जीन्स, इनहेरिटेंस, डीएनए, ठीक है? हाँ जी, पता चल गया सारा? हाँ जी, थैंक यू। तो ये टॉपिक मेरा इस बार मेरे गेस्ट वर्क में, आप देखना आने वाले 3 महीनों में 1 या 2 एसेस पे बेस्ड आएंगे, ठीक है? अब ये किसको आते हैं आई कांट से, बट एसे सेट हो चुके हैं बिकॉज़ फॉलोअप्स में है ना, फॉलोअप्स में। हाँ है मैम। हाँ, तभी मैंने कहा है कि देखना आपको दिखेगा Yes, ma'am, है बॉन्ड टैलेंट वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फॉलोअप्स मतलब फॉलोअप स्पीकिंग के फॉलोअप्स होते हैं ना, वो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, आपको ये डिस्कस करके स्पीकिंग में भी हेल्प मिलेगी। ओके, हाँ, सो वी आर ऑलवेज किलिंग 2 birds with 1 stone, हम 1 bird with 1 stone कभी नहीं मारते, we always kill 2 birds with 1 stone. Okay, while we are doing writing, we are doing speaking, while we are doing speaking, we are doing writing in the background. Okay. So when you are doing these essay questions, you are also doing the follow-up questions of the, you know, after the cue card, the questions which are asked. They are such questions. Okay. Now, if you have done them well, and if you know the topic well, you will be able to answer nicely. That I hope you understand that. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. फिर आपने इसके बारे में मैंने ये लिखा है कि while genes do play a role, बेटा मानिक गुप्ता प्लीज लाइनें मत डालो. Okay. So while genes do play a role, primary determinant is nurture, education and bringing up. फिर मैंने लिखना है कि क्यों, मतलब ये points मैंने डाले ऐसे में. It has been well researched that the way a child is nurtured is a key factor in shaping his or her personality and several behavioral characteristics. फिर दूसरा मैंने पॉइंट डाला कि रिसर्च भी की गई है, पहला पॉइंट तो ये रिसर्च भी की गई है कि जो नर्चर है, जैसे बच्चे को अपब्रिंगिंग उसकी करते हैं, वो की फैक्टर होता है उसकी पर्सनालिटी को शेप करने के लिए. और दूसरा पॉइंट है चिल्ड्रन जो है वो अपने जीन पूल से ऊपर उठ सकते हैं and they can rise to great heights. Even if a child is born to criminal parents but brought up away from that environment and provided quality education, he will not be a criminal. Okay. In many countries, teaching moral and social values is a part of their education system. आपको पता है आपकी क्लास यहाँ स्कूलों में अब मॉरल साइंस का पीरियड होता है? Yes. होता है? मैम होता है। तो मॉरल साइंस में क्या पढ़ाते हैं? मॉरल वैल्यूज, एथिक्स. क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि बच्चों को ये पढ़ा के उनको सुधारा जा सकता है, चाहे घर में जैसा भी एटमॉस्फेयर हो, ये चीजों का फर्क पड़ता है.
ठीक है, so that ये point लिख सकते हो, teaching moral and social values is a part of the education system. This makes the children realize the importance of ethics starting at an early age, keeping them away from deviant and criminal behavior. Okay, अब फिर एक बता देना कि why do children born in families of criminals grow up to be criminals? अब क्या होता है कि ऐसे देखा गया है कि बच्चे क्रिमिनल्स के घर में पैदा हुए बड़े होकर क्रिमिनल्स बन जाते हैं, पर ये जीन्स नहीं है. मैंने इसमें भी वो प्रूव कर दिया कि दैट इज आल्सो नॉट बिकॉज ऑफ जीन्स. उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं. ठीक है, वहां पे क्या फैक्टर्स हैं? लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल्स. अब पॉजिटिव रोल मॉडल्स नहीं है बच्चों के पास. देख क्या देख रहे हैं सारा दिन घर में? क्रिमिनल्स को देख रहे हैं. ठीक है, जो किसी भाई के घर में जो बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड के डॉन्स हैं, इनके घर में कोई बच्चा पैदा होगा, वो सारा दिन क्या देखेगा? तो फिर वो उसके रोल मॉडल्स कैसे होंगे? तो उनको देख के अगर वो क्रिमिनल बनता है, ये थोड़ी मतलब है कि उसके जीन्स में क्राइम के जीन्स हैं. ठीक है, फिर उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी उसके पॉजिटिव जो रोल मॉडल्स, नेगेटिव कंडीशनिंग हो जाती है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस. फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज इन चाइल्डहुड. घर के हालात ठीक नहीं है, द चाइल्ड हैज टू फेस अब्यूज, फिजिकल मेंटल घर में. ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी बच्चे जो हैं वो बड़े होके क्रिमिनल्स बन जाते हैं, क्योंकि उनका जो नेगेटिव कंडीशनिंग हो जाती है माइंड की. ठीक है, ऑल्सो it is a fact that crime is a product of the circumstances of a person, जैसे poverty, illiteracy and unemployment. These are the root causes of crime. तो ये चीजें होती हैं, not the genes. तो basically genes का रोल बहुत कम है, और देखा जो गया है कि बच्चे कभी क्रिमिनल बैकग्राउंड में पैदा होते हैं तो क्रिमिनल बनते हैं. It is also because of other factors, and it is definitely possible to mold children into becoming good adults. ठीक है, ये आपको समझ आ गया ये वाला पॉइंट. नाउ वील गो टू द एसे. आई विल ओपन द अदर फाइल. वील गो टू द एसे बिकॉज दीज आर गेस वर्क. आई विल मैम डेविएंट का मतलब क्या है? हाँ करा, एक मिनट. अवे फ्रॉम द नॉर्मल पाथ. मैंने ना इसका प्रोनाउंसिएशन भी देखनी थी. डिविएंट है. डिविएंट है. ई वाली प्रोनाउंसिएशन नहीं है, आई वाली है. डिविएंट. ओके, डिविएंट बिहेवियर. A person who behaves differently from what most people do to consider to be normal and acceptable. Deviant होता है हटके. Deviant जो मतलब ठीक है, wrong behavior है, जो भटका हुआ behavior. Exceptional मैम. Different from what most people consider to be normal and acceptable. उससे different. तो उससे different. Deviant. The pronunciation is deviant behavior. Speaking में बोलना पड़ सकता है. तो now we will do this essay from the essay. Okay, now this is the book in front of you. This is 298, I think. Ma'am, I had a quick question. Yes. Yeah. Bolo. Yeah, thanks, ma'am. Ma'am, I wanted to know, I was reading a couple of essays, so I wanted to understand paramount importance go side by side. It's like we have to use that like in the same order, or is it we say like safety is a paramount to us, like safety is paramount to us. ये भी Okay. लिख सकते हो. और paramount it's of paramount importance ऐसे भी लिख सकते हो. अच्छा, ma'am, we can write both the ways. Yes. Okay, fine. Thank you, ma'am. Okay, so this is the essay. This let's see how it has been written. Some scientists are of the opinion that hereditary characteristics are responsible for the person's temperament and hence future career. I believe that while genes do play a role, the primary determinant is nurture, education and bringing up. ये हमने पहले भी discuss करा था. Just आपके लिए revision हुई है. Introduction, 2 sentences. Let us see the conclusion. To sum up, the role of nature in determining the behavior of a child cannot be ignored, but it is the way the child is nurtured that shapes the future behavior and personality of a child, thus ascertaining that it is possible to prevent children from growing up to be criminals. इसमें कुछ नया नहीं लिखा. 1 sentence लिखा है, वो ही चीज लिखी है जो ऊपर लिखी थी, different wording करके.
ये सारे जिन्हें समझ लो। बच्चे मेरे को बाद में कहते हैं कंक्लूजन नहीं समझ आती क्या लिखनी है, वही चीज दोबारा लिखनी है जो ऊपर लिखी है, सिर्फ वर्ड प्ले करो थोड़ा, ऐसे नहीं लगे कि वो एज सच आपने नीचे डिट्टो कर दिया, चेप दिया, ठीक है। मैम तो बेसिकली ये डिस्कस बोथ साइड्स और गिव योर ओपिनियन टाइप ऑफ ही हो गया ना? नहीं, डिस्कस बोथ साइड्स है ही नहीं ना, बोथ साइड्स लिखा ही नहीं है। एक अगर बोथ साइड्स होता फिर हम यहाँ लिखने व्हाइल अदर पीपल बिलीव दिस से दिस, उसमें अच्छा, जी, कंक्लूजन जी, तो जी। वही है जो आपका व्यू है, अदर पीपल नहीं है इसमें। ये तो मैम नहीं। एक्सटेंड एग्री और डिसएग्री वाला है। एग्री एक तरह से ओपिनियन ऐसे, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे, सारे ओपिनियन ऐसे होते हैं ना, बेसिकली आपको ओपिनियन हर एक में देना है, बट कुछ ना इट कुछ इज अ opinion डायरेक्ट देना है। क्वेश्चन ऐसे। यस मैम उस दिन बात हो रही थी ना कि डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन, तो उसमें आप कह रहे थे कि इफ यू नीड टू स्कोर अ बैंड ऑफ एटलीस्ट 7 यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, सो इज दैट रेलेवेंट टू ओनली डिस्कस बोथ द साइड्स एंड गिव योर नहीं ओपिनियन, नहीं नहीं या नहीं फिर नहीं या नहीं फिर नहीं फॉर अ नहीं, गुड? नहीं। अरबीना मेरी बात आपने देखो, मैं आपको बताती हूँ, जो डिस्कस ऐसे होता है ना, उसमें अगर आप कहीं भी चेक करोगे ना, डिस्कस ऐसे और किसी भी ओपिनियन ऐसे में ये फर्क है कि डिस्कस ऐसे में इंट्रो में ओपिनियन देना जरूरी नहीं होता, बट टू क्वालिफाई बाकी एसेस में तो देना ही देना है इंट्रो में, सिर्फ डिस्कस में हम नहीं देते थे। तो मैंने कहा था डिस्कस में भी अगर आपको 7 के लिए क्वालिफाई करना है तो ओपिनियन दे देना। ओके 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 गॉट ओके इट? ओके 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 ओके। हाँ। तो आपको ओपिनियन मतलब नॉर्मली ऑलमोस्ट सब आपको तरफ अपना देना ही है? ओपिनियन हर ऐसे में, आपको अपना स्टैंड हर ऐसे में लेना है। ओह यस, ओके, ओके, आई गॉट हर इट। इंट्रोडक्शन में। Yes, ma'am. Okay? I got it. Yes. Then we read this essay. It has been well researched that the way a child is nurtured is a key factor in shaping his or her personality and several behavioral characteristics. This is done by the family in the very first few years of a child's development, and then later there are some influences like that of the society, teachers and friends. Moreover, children imitate what they observe, and if they have positive role models around them, it is highly unlikely that they will deviate from the right path. Deviate, okay? So deviant behavior भी इसी word से बना हुआ है. Furthermore, children can rise above the gene pool and rise to great heights, even if a child is born to criminal parents but brought up away from that environment and provided quality education, he will not grow up to be a criminal. To add to it, in many countries, teaching moral and social values is a part of their education system. This makes the children realize the importance of ethics, starting at an early age, keeping them away from deviant and criminal behavior. Admittedly, there are many examples of children born in families of criminals growing up to be criminals. However, there are several factors that this can be attributed to, like the lack of positive role models, negative conditioning of the child's mind during the developmental stages, physical and mental abuse in childhood, etc. Also, it is a fact that crime is a product of circumstances of a person. Poverty, illiteracy, and unemployment are the root causes of crime. And then the conclusion. अब मैंने जो आपके लिए आइडियाज निकालने हैं, आइडियाज वाली बुक में जो मैंने आइडियाज वाली फाइल अब तैयार हो रही है आपके लिए, तो आइडियाज जैसे मैं आइडियाज कराती हूँ, आइडियाज को आप अगर मगअप कर लो, पूरा ऐसे मगअप करने की जरूरत नहीं है, हैंडलिंग द इंट्रो कंक्लूजन सीख लो, आइडियाज अच्छे से याद कर लो, तो आपका काम जो है वो काफी इजी हो जाएगा. यू विल बी एबल टू राइट फेयरली गुड एसे इन द एग्जाम्स. ठीक है, और टाइम भी कम लगेगा. इंट्रोज कंक्लूजन्स पे फोकस करो. Try to make intros conclusions flawless. What is the meaning of flawless? Without a single flaw. Galti, त्रुटि. Okay, त्रुटिहीन in Hindi. Okay. Errorless. Errorless, yes. Okay. Explain the second body paragraph. Without mistake. ये वाला भी वही है ना, जीन पूल से ऊपर निकल सकते हैं. ठीक है. और थर्ड बॉडी पैराग्राफ में मैंने कहा है कि एडमिटेडली हम देखते हैं कि बच्चे क्रिमिनल फैमिलीज में क्रिमिनल्स बनते हैं, पर वो इसलिए नहीं बनते कि जीन्स में है. मैंने अपना पॉइंट सपोर्ट करा है कि प्राइमरी डिटर्मिनेंट नर्चर है. ठीक है. सो आई हैव सेड दैट द प्राइमरी डिटर्मिनेंट इज नर्चर, नॉट नेचर. हाँ, नेचर का रोल हमें लगता है और थोड़ा बहुत है भी, पर नेचर का रोल ज्यादा बिहेवियर से ज्यादा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में है. बालों, आंखों का रंग, बालों का रंग, हाइट, वेट, इन पे, इस पे ज्यादा रोल है. पर उस पे भी है, बिहेवियर पे भी, बट दैट इज बिकॉज
children imitate what they see at home. It is not in the genes कि कोई ऐसा है तो वैसा है. You can always make a child become a good human being by teaching him good values right from early years of his life. ठीक है? ये आपको इससे अब अगर एग्जाम में आया तो will you be able to make it and write something good enough to score good? Yeah, fair enough. Yes, ma'am. Okay. Now we come to the second essay के पहले उस पे आते हैं हम ideas पे. Essay idea. Okay. Ma'am, can you please tell the categories of the essay? Like, I don't know what they are. Okay. मेरे से पूछा है कुछ किसी ने? Yes, ma'am. हाँ. Well, I was asking about the categories of the essay since I'm a newcomer. I don't know. आप कौन से ग्रुप में हो? GT के पोस्ट डेमो? Ma'am, post demo. So any student in that group में please repost that video of the essay जो मैंने अभी कुछ दिन पहले करवाया था essay types का. I think मैंने उसको YouTube पे भी public किया हुआ है. I'll try to repost it. Okay? उससे आपको idea लग जाएगा कि don't worry. Okay. ठीक है? Okay. So next is next essay. Okay, next essay is research indicates that the characteristics we are born with have much more influence on our personality and development than any experience we may have in our life. Which do you consider to be the major influence? ठीक है? अब ये से भी आपको समझ तो आ रहा है ना कि नेचर नर्चर पे ही है. Similar है. बिल्कुल सिमिलर है. ठीक है? Yes, ma'am. तो रिसर्च इंडिकेट करती है कि जिन कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारा जन्म हुआ है, दे हैव मच मोर इन्फ्लुएंस हमारी पर्सनालिटी पे, हमारी डेवलपमेंट पे उनका बहुत इन्फ्लुएंस है देन एनी एक्सपीरियंसेस वी मे हैव इन लाइफ. व्हिच डू यू कंसीडर टू बी द मेजर इन्फ्लुएंस? तो एक तरह से ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही हो जाता है. ठीक है कि आपके हिसाब से मेजर इन्फ्लुएंस क्या है? दो चीजों का इन्फ्लुएंस होता है. बट ओके, सो वन स्टूडेंट गुस्से में छोड़ गया हमारी क्लास को कि बहुत शोर मचा रहे हैं पीछे, कुछ नहीं समझ आ रहा. आई एम सॉरी टू से, आई एम गोइंग बाय. अपने आप को म्यूट रख लिया करो, आपने नाराज कर दिया एक बच्चे को. हाँ, Ma'am, everybody must have patience. देखो पता है क्या होता है, समटाइम्स व्हेन यू आर engrossed in the class you fail to realize कि पीछे बात हो रही है या पीछे उससे डिस्टर्बेंस है. तो बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखो, अपने आप को सारे जने म्यूट रखो. ओनली अनम्यूट व्हाइल व्हेन यू हैव टू आस्क समथिंग. ओके, अदरवाइज कीप योरसेल्फ म्यूटेड. ओके, सो इसमें इस ऐसे में क्या था, ये ऐसे भी नेचर नर्चर का है. इसमें क्या था कि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, ये एक लाइन आप डाल सकते हो कि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट हैज बीन रेजिंग फॉर एजेस. ठीक है? एंड नो क्लियर कट आंसर हैज बीन फाउंड सो फार. ये लाइन रट लो. ये नेचर नर्चर का कोई भी ऐसे एक डाल सकते हो आप, ऐसी कुछ लाइनें बना सकते हो जो डल सकती हैं. ठीक है? Beautiful line. हाँ. Ma'am, can you repeat, मैं please? repeat I करना. want to. मेरे ख्याल ऐसे में है भी नेचर वर्सेस नर्चर. वर्सेस को हम वीएस करके लिखते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर. वैसे वर्सेस का फुल फॉर्म ये VERSUS. नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट हैज बीन रेजिंग फॉर एजेस. रेजिंग, भख रही है एजेस से. RAGING. Debate has been raging for ages and no clear cut answer has been found so far. and no clear cut. Suman, can you go on mute, please? And no clear cut answer has been found. Hanji? One clear cut answer has been found so far. Okay. कोई मिला ही नहीं आंसर, मिल भी नहीं सकता. ठीक है, हमने ऐसे को हैंडल ही ऐसे करना है. ठीक है, फिर आई कंसिडर कि दोनों हमें इन्फ्लुएंस करते हैं अलग अलग तरीकों से.
I consider that both nature and nurture influence us in different ways, and there is no way to show what has the bigger role. और कोई तरीका नहीं हमारे पास शो करने का कि किसका रोल ज्यादा है. ठीक है? Ma'am, Yes. but then in this sentence, if we say that then there is no way to show what has got a bigger role, so we are not showing our inclination in this. We are showing that both have equal role, and we have taken a stand. Bigger role नहीं बताया जा सकता, मतलब दोनों का equal है. समझ गए? हाँ. ये भी stand तो हो मतलब गया. हम इसमें अच्छा, okay. हाँ, ये भी stand हो गया अभी ना. ठीक है? I thought sailing on both the boats at the नहीं, time. So ये stand है. हाँ, see stand है कि हम we are on the fence पर stand ही है ना कि हमें पता है कि equally role है ना? कि कोई तरीका ही नहीं है बताने का किसका बड़ा रोल है. दोनों का रोल है, दोनों का अलग अलग रोल है. ठीक है? और उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है. मैंने एक तरह से ये अपना पॉइंट निकाला है. ठीक है? फिर एक पैरा रोल ऑफ नेचर का बना देना, एक रोल ऑफ नर्चर का बना देना. ठीक है? और एक पैरा फिर आप अपने व्यू का ये लिखना कि इसमें कोई जवाब नहीं अभी तक आया. ठीक है? और कहना भी बहुत मुश्किल है. चलो, let's see how first we'll read the points, then we'll go to the essay also. Okay? Role of nature. Nature is believed to be what determines our personalities, looks, and other things because it is all genetically passed down. It has been seen that a newborn does have a set of inherited traits. For instance, some of the great legends like Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Kishore Kumar became successful at a very early age, even without much training, teaching me training. Okay? उन दिनों में कहाँ ट्रेनिंग होती थी? इनमें कोई इनबॉर्न टैलेंट था? ठीक है, तभी ये लोग पहुंचे जहां पहुंचे. नहीं मैम, ये एक्चुअली गलत है. लता मंगेशकर जी के फादर थे ना, वो बहुत बड़े सिंगर थे. तो फिर उन्होंने ना वो एक बहुत बड़े खान साहब से वो ट्रेनिंग ली थी लता मंगेशकर जी ने, और फिर उसके बाद उन्होंने क्लासिकल बहुत अच्छी तरह से सीखा और फिर वो इतने सक्सेसफुल बने. मुझे पता है इसको बोल रही. ठीक है. हाँ, पर हमें कोई और एग्जांपल मिल जाएंगी ऐसी जिन्होंने ज्यादा ट्रेनिंग ली. आप देखो, आप जो ये जो इंडियन आइडल वगैरह में चाइल्ड बच्चों वाला आता है, 3-3 साल के बच्चे, 4-4, 5-5 साल के बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं. तो वैसे उसको भी मैम वो ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि मुझे पता है. आप देखो, आपके घर में कोई 2 साल का बच्चा हो, आप उसको कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, दिलवा दो, कितने भी पैसे खर्च के, अगर उसमें कुछ इनहेरेंट नहीं है ना टैलेंट, वो इतना छोटा बच्चा उतना पिकअप नहीं कर सकता जितना वो बच्चे करके दिखा रहे हैं. अच्छा, ओके, यस. ये बात में तो कोई दम है एक्चुअली, because you know all we try our level best कि हमारा कोई मन है. जैसे मेरे son in law को बड़ा शौक है कि उसकी बेटी को सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, because he sings well, but उसका इंटरेस्ट ही नहीं है. तो पर वो बड़ी कोशिश करता है, तो उसको कहता है उसको पियानो टीचर रख दिया, तो पियानो, और वो उसको कहती पापा why do you want to me to learn piano? कहता है बेटा because see my parents could not afford, I could not do. And then you could not do it, why do you want me to play the piano? फिर कहता है if you will learn the piano you will become very rich one day. इसने 2-4 सेकंड सोचा, फिर उसको जवाब देती है I don't want to be rich. हाँ, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर that is I don't want to be rich. तो फिर उसने कहा फिर what do you want to do? कहती I want to do art. तो उसको ड्राइंग लगा दी ट्यूशन, और ये हटवा दिया पियानो. तो मतलब वैसे मैं बता रही हूँ कि इनहेरेंट कुछ ना कुछ तो अंदर होता है. डांस तो नहीं होता है, डांस तो प्रैक्टिस हो जाएगा, पर फिर भी आप देखो कुछ लेजेंड्स हैं जो बिना सीखे बुझ के झुग्गियों वाले बच्चे आ रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं. कुछ तो है. I mean, अब ऐसे तो स्पोर्ट्स भी है, क्रिकेट भी है, ये बहुत मेहनत करके है, इसमें इस जीन्स वगैरह का रोल नहीं है. पर कुछ चीजों, म्यूजिक में मैं मानती हूँ, कुछ चीजों में तो है. मतलब डांस में मैं मानती हूँ नर्चर का रोल ज्यादा है, प्रैक्टिस का रोल ज्यादा है. डांस में डेफिनेटली प्रैक्टिस का रोल ज्यादा है. ठीक है, बट म्यूजिक में अगर गले में सुर नहीं है ना, तो किसी को आप कितनी भी ट्रेनिंग दे लो, वैसा सिंगर नहीं बन सकता है वो. I don't know, that is what I feel. कुछ चीजों में सही है मैम. हाँ,
सही है ये। Yes, ma'am, that is definitely yeah, God gift. हाँ मतलब कुछ चीजों में है। आई मीन डांस वगैरह का मैं मानती हूँ, स्पोर्ट्स का मैं मानती हूँ, अब लीडरशिप का भी आगे ऐसे आएगा नेचर नर्चर में, वो भी मैं मानती हूँ कि उसमें नेचर का रोल नहीं है, जीन्स का रोल नहीं है, पर कुछ चीजों में है। तो आपको थोड़ा दोनों तरफ जाके ऐसे लिख लेना, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कुछ चीजें जो है। और फिर आपने ये जो ग्रेट लेजेंड्स है उसमें लता मंगेशकर का नाम हटा सकते हो, पर कई ऐसे आज फेमस सिंगर्स हुए भी हैं जिनके पास इतने मीन्स ही नहीं थे कि वो इतनी कोई ट्रेनिंग ले ले। ठीक है मैम हाँ मैम इसमें एग्जांपल हम मिल्खा सिंह की भी तो दे सकते हैं कि उसने ट्रेनिंग ली थी बट वो तब भी इतना अच्छा रनर बन गया था। नहीं मिल्खा सिंह रनर तो कोई भी बन सकता है विद ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग ली थी, वो अकेला भागता था, आपने उसकी मूवी नहीं देखी, यूज्ड टू रन हिमसेल्फ। अभी मैम बट पहले थोड़ी भागता था वो, बाहर नहीं भागा ना, पहले तो उसके पास था मतलब शुरू से वो मतलब था उसके अंदर पहले से ही था ना, इनहेरेंट टैलेंट था उसमें कि वो रनिंग कर लेता था। भागता था कुछ और करने के लिए, वो दिखाया हुआ है मूवी में। हाँ तो फिर टैलेंट के था। जैसे हम इधर लिख सकते हैं, टैलेंट के अकॉर्डिंग। मेरे को नहीं लग रहा ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। पेंटिंग और ड्राइंग का कह सकते हैं, पेंटिंग और ड्राइंग, लाइक कुछ लोग बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं ना ऐसे। हाँ बिल्कुल, सभी थोड़ी ना कर हाँ, सकते। सभी नहीं कर सकते, कुछ लोग बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, उसका कह सकते हो, पर हाँ ऐसी कोई एग्जांपल ले लेना। फिर अनदर एग्जांपल आप ये वाली एग्जांपल डाल सकते हो कि कोई आइडेंटिकल ट्विन्स है रियर्ड अपार्ट, उनको अलग अलग रियर करो। एक जैसे किसी के ट्विन्स हुए, एक बच्चा उन्होंने अपने जैसे किसी के बच्चा नहीं हो रहा, अपनी बहन को दे दिया एक बच्चा की, चल वो अमेरिका में है, वो अमेरिका ले गई, एक बच्चा यहाँ एक अमेरिका में पला है। अब दोनों बच्चों में चाहे वो बिल्कुल अलग अलग पढ़ले हैं, कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो ये बताता है कि नेचर डज प्ले अ रोल। आप ये एग्जांपल डाल सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो दैट आइडेंटिकल ट्विन्स रियर्ड अपार्ट are far more similar in personality than randomly selected pairs of people। जैसे कोई दो बच्चे, एक इंडिया में पढ़ रहा है, एक यूएस में पढ़ रहा है, पर आइडेंटिकल ट्विन्स में एक इंडिया में पढ़ रहा है, एक यूएस में पढ़ रहा है, तो इनमें थोड़ी सिमिलैरिटी ज्यादा होगी आम किसी भी दो बच्चों से। ऐसा करके लिख सकते हो आप अपने पैरा में। और ये एग्जांपल सही है आपकी, अगर लता मंगेशकर को इतनी ट्रेनिंग मिलती है तो मैं चेंज करूंगी, बट आई विल हैव टू लुक फॉर सम एग्जांपल व्हिच वुड सीम फीजिबल। और मेरे को लगता है म्यूजिक से ये जो बच्चों वाले किसी में इसमें से देख के ना कोई ढूंढ के डाल लेंगे इसमें। देन मैम हेलो। हाँ जी बोलो हाँ जी बोलो। मैम मेरे हिसाब से तो what you have written is very correct. Actually these people, even though their resources were very limited or very minimal at that point of time, or plus ऊपर से unless and until you don't have anything in yourself, these characteristics, you definitely cannot go to those heights. वो डांस मैम also वो cannot be groomed। वो डांस इंडिया डांस वगैरह आप देखते हो मैम, वो छोटे बच्चे जो ऐसे 2-3 साल के वो नाचते हैं, दैट इज टेक्निकली इम्पॉसिबल इवन फॉर अडल्ट्स टू डांस लाइक दैट अनलेस एंड अनटिल आपके अंदर कोई क्वालिटी है वैसी, या पहले से ही है, कहीं से मिला है आपको वो। वही मैं कह रही हूँ ना, ये आई एग्री तो इसमें डाला जा सकता है। और मैंने ये नेट से ही उठाया है। Without training. हाँ But it is impossible to without training how to dance on the stage because some children have fear. चलो वो है, मेरी बात सुनो। मैम किसी के जीन्स में से भी तो होता है ना, अब लता मंगेशकर के डैड को था तो उनके लिए इजी हो गया ना ये। उनके बच्चों में वो टैलेंट आ गया ना, तो उन्होंने उसको सिंगर के बच्चे सिंगर ही होते हैं ना मैम मोस्टली। अगर आप में थोड़ा टैलेंट है, अगर आपके जीन्स हैं सिंगिंग के और आपको ग्रूम कर दिया जाए, तो आप आम इंसान से बहुत कम ट्रेनिंग में ग्रूम हो जाओगे। करेक्ट। ठीक है, सो यू कैन पुट दिस एग्जांपल। फिर भी अगर लता मंगेशकर को ट्रेनिंग दी भी गई, आप किसी रैंडम किसी पर्सन को उतनी भी ट्रेनिंग दे देते, उससे डबल भी दे देते, वो लता मंगेशकर नहीं बन सकती थी। मैम ये भी तो हुआ है, उसके गले पे रिसर्च भी हुई साइंटिस्ट ने की कि उसकी इतनी उम्र हो गई, अभी तक वो इसकी जो आवाज है वो इतनी सुरीली क्यों है। हाँ, मतलब ये तो नेचर हो गया ना। हाँ, तो वो ये आप लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग भी उसकी आवाज पे कोई कुछ नहीं हुआ। चलो फिर हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं, हम इसको लिख देंगे, एग्जाम्पल को डाल देंगे, चलेगी। वहां पे उन्होंने इसकी वो नहीं करनी है, ज्यादा पूछने नहीं जाना कि सच में ऐसे। मैम मैसेज आ रही है बच्चों के लिए PhD। हाँ बिल्कुल सही है। ओके, देन वी गो टू द रोल ऑफ नर्चर।
Nurture, on the other hand, with proper mentoring and practice, any person can achieve success in life. If a person has an environment in which everybody is in the same profession and are successful in it, there is a great chance that the person will land up in the same profession and will attain heights, because in that environment he will get proper nurturing. अब कहते हैं डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, ठीक है? वो क्यों डॉक्टर बनते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स को ये रियलाइजेशन है कि हम डॉक्टर हैं तो हम अच्छा कमा रहे हैं, हमारे बच्चे भी अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो इनका फ्यूचर भी सुरक्षित हो जाएगा। उनको वो एटमॉस्फेयर देते हैं कि वो पढ़ लें, लिख लें, अच्छी तरह डॉक्टर बन जाएं। वो डिफरेंट बात है कि मेरे दोनों बच्चे नहीं बने, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डॉक्टर हैं। उन्होंने बोला कि हमारी लाइफ देख देख के इतने परेशान थे, रात को मम्मा उठ के डिलीवरी कर रही है, सुबह उठ के टीचर ने पूछा क्या बनेगी बड़ी होके? कहती मैडम ये नहीं पता क्या बनूंगी, एक बात पक्की है कि डॉक्टर नहीं बनूंगी। वो मुझे पता है, सो यू नो शी न्यू कि मैंने ये नहीं बनना है। बट ये मतलब ऐसे मैं बता रही हूँ कि नर्चर का ये रोल है कि उनको चांस दिया जाता है, उनको ग्रूमिंग दी जाती है उस वे में कि वो कर जाए वो चीज, ठीक है? और दूसरा, इफ अ पर्सन हैज ट्रू डेडिकेशन देन इट कैन बीट टैलेंट। अगर ट्रू डेडिकेशन है किसी में तो वो टैलेंट को भी बीट कर सकता है और उस लेवल तक पहुंच सकता है। वेरियस सिंगर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स did work really hard for years and because of that they got recognition in the entire world, ठीक है? तो ये आप ये कह सकते हो कि हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट। ये बड़ा अच्छा है, ये हार्ड वर्क कैन बीट, 5 वर्ड का सेंटेंस है पर देखो कितना मीनिंगफुल है। हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट। टैलेंट क्या होता है? इनबॉर्न, ठीक है? चलो, own view मैंने ये लिखा है, the more we delve into the topic, the more the evidence reveals that the answer is both। अब मैंने both को ना कॉमास में डाल दिया, बिकॉज अगर मैं नहीं डालती ना तो उसका वो मतलब बोलने में ही नहीं वो आना था सेंस। अब जैसे मैं बोल के आपको बोल रही हूँ, the more we delve into the topic, the more the evidence reveals that the answer is both। There is a lot people inherit from their parents through genes, but there is also a lot people pick up by observing their parents. I believe it is impossible to determine what plays a bigger role. In some cases, people's environment and upbringing might be more responsible for who they turn out to be, and in some cases, it may be their natural inborn qualities they inherited. ठीक है? ये पैरा लिख दोगे ऐसे। Now we'll go back to the essay. And उसको सारा तो मैंने इसमें बोल दिया है, पर आप ऐसे अब देखो and you will see ये वाला ऐसे, ये नहीं, ये वाला है, ओके। तो ये वही इंट्रोडक्शन पूरा लिखना है जैसे लिखा हुआ है। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट हैज बीन अराउंड फॉर एजेस एंड इट हैज बीन सपोर्टेड वेल। मैंने जो आपको दिया सेंटेंस वो सिमिलर है, ठीक है? And it has been supported well by both sides. Nature referring to heredity and nurture referring to the environment are two very reasonable explanations as to why we are the people we are today. I consider that both nature and nurture influence us in different ways and there is no way to show what has the bigger role. फिर उसके बाद नेचर वाला पैरा, उसके बाद नर्चर वाला पैरा, उसके बाद अपने वाला पैरा। फिर टू कंक्लूड, आई बिलीव दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंपेयर द रोल ऑफ नेचर एंड नर्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एज देयर इन्फ्लुएंस वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है? कई लोगों में नेचर का ज्यादा रोल है, कईयों में नर्चर का ज्यादा रोल देखा गया। ये लिखा है मैंने अपने वाले पैरे में, सो आई हैव कंक्लूडेड विद दैट, ठीक है? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एसे। वी विल गो टू द आइडियाज फाइल वंस अगेन and we'll see what is the next essay. Okay. Okay, ये मैंने ना नेचर नर्चर वाले में डाल दिया है, पर ये बेसिकली नेचर नर्चर वाला ऐसे नहीं है। Children who grow up in families which are short of money are better prepared with the problems of adult life than children who are brought up by wealthy parents. To what extent do you agree or disagree? अब ये agree disagree ऐसे है, टॉपिक कह रहा है कि जो बच्चे गरीब घरों में पैदा होते हैं वो बड़े होके जो उनको प्रॉब्लम्स आती है उनको डील करने में ज्यादा समर्थ होते हैं देन चिल्ड्रन जो रिच फैमिलीज में पैदा होते हैं। Yes. ठीक है? तो मैंने इसमें देखो ये एग्री डिसएग्री ऐसे है। किसी भी एग्री डिसएग्री ऐसे में फॉर द बेनिफिट ऑफ द न्यू कमर्स टुडे इन द क्लास, जो कि क्वाइट ए फ्यू है, किसी भी एग्री डिसएग्री ऐसे में आपके पास चॉइस होती है। यू कैन स्ट्रांगली एग्री
you can strongly disagree, okay, or you can agree with a concession or disagree with a concession. ठीक है, अब मैंने इस ऐसे में ना strongly agree करा है, स्ट्रांगली एग्री करा है, और मेरे को फिर डिसएग्री उस दूसरी साइड पे मेरे को कोई पॉइंट नहीं डालने, मैंने तीनों पैरे उस पॉइंट में बना दिए हैं कि जो गरीब घरों में बच्चे पैदा होते हैं, मैंने माना है उसको स्ट्रांगली कि दे आर बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस एडल्ट लाइफ देन चिल्ड्रन हु आर born in affluent families, rich families. और वो क्यों होते हैं बेटर प्रिपेयर्ड, उसके मैंने 3-4 पॉइंट्स उठाए हैं, 3 पैरों में डाल दिए, ठीक है. First पैरे में the main reason is that children raised in poor families have more situations to solve a problem or make a decision, as both parents are busy in earning for the family and are not always available to guide children or make decisions for them. अब देखो, जो गरीब घर है, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों को ना ज्यादा चांसेस मिलते हैं कि ऐसी सिचुएशंस ज्यादा मिलती हैं जबकि उनको अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है. इसलिए वो ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं और बड़े होके उनको प्रॉब्लम उनकी कम हो जाती है, ठीक है. ये पहला पैरा बना लोगे, इसको डेवलप कर लोगे, एक्सपैंड कर लोगे, समझ आ गया? Yes, ma'am. दूसरा पैरा बना देना. Another reason is that most children from such families start working part-time at an early age to help with household finances or to fulfill their needs. तो ऐसे बच्चों को अर्ली एज से ही ना पार्ट टाइम काम भी करना पड़ जाता है ताकि अपनी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी बना ले या घर के खर्चे में योगदान डाले, ठीक है. तो इसलिए thus they better understand the value of money and this makes them more skilled at money management as well. तो उनको मनी मैनेजमेंट भी बेटर आ जाती है बड़े होके. ये दूसरा पॉइंट है, अलग पॉइंट है ना, ओवरलैपिंग नहीं है ना, समझ आ रहा है? No. Yes, ma'am. तीसरा पैरा, their situations force them to learn many essential life skills like cooking, plumbing, etc. as their parents are too busy to take care of these things and financial conditions might not permit them to hire a third person for such tasks. अब जैसे हमारे घर में अगर कोई टैप लीक कर रहा है तो what will my son think? वो बोलेगा प्लम्बर ढूंढो, प्लम्बर को बुलाओ. पर जो पुअर फैमिलीज हैं उनमें बच्चे ना पहले तो ये देखेंगे कि इसको अपने आप कैसे ठीक किया जा सकता है, तो उनको कई काम सीखने पड़ते हैं मजबूरी में बिकॉज दे कैन नॉट हायर प्रोफेशनल्स फॉर एवरी स्मॉल एंड मीनियल टास्क एंड दैट मेक्स देम बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस चैलेंजेस ऑफ एडल्ट लाइफ, ठीक है. उनको खाना भी बनाना पड़ सकता है, बोथ पेरेंट्स आर अवे, दे मे हैव टू कुक आल्सो. अब जैसे जो मेरी मेड खाना बनाने वाली आती थी, अभी तो नहीं है वो, शी हैड 4 चिल्ड्रन. One daughter was 10 years old और उसके 3 बेटे थे, 4 years, 3 years and 2 years. That girl used to look after those 3 brothers and she used to be working in many houses. तो मतलब, और वैसे भी घर में कुछ हो गया उसको कुकिंग करनी पड़ जाती थी, अपने भाइयों को खिलाना है खाना, या she used to be there, only then the mother could come out and work. तो वो ऐसी चीजें भी उनको आ जाती हैं, तो डेफिनेटली बड़े होके दे आर मोर प्रिपेयर्ड टू फेस द चैलेंजेस ऑफ एडल्ट लाइफ दैन चिल्ड्रन हु आर बोर्न इन रिच फैमिलीज. तो मैंने 3 पैरास में ये पॉइंट रख दिया. फाइनली मैंने ये भी कर दिया, इट इज जनरली द ओल्डर सिबलिंग्स हु टेक केयर ऑफ द यंगर चिल्ड्रन, thus these children are better prepared to raise their own children in the future. ये वाला पॉइंट भी है, ठीक है. तो ये आप ये 4 पॉइंट्स जो है इनको आप 3 पैरास में कर लेना, लास्ट वाले 2 पॉइंट्स एक पैरा में आ जाएंगे एंड योर एसे कैन बी डन. Now we'll go to the essay and we'll just look at the introduction and the conclusion. Points वाले हैं. Yes. ये जो 4th point है finally वाला, इसको as a conclusion भी use कर सकते हैं? नहीं, conclusion में कभी कोई नया point नहीं लिखना. Conclusion में मैं आपको बताऊं, intro and conclusion में मैं आपको बताती हूँ. आप मेरी बात ध्यान से सुनना. Intro and conclusion में आप अगर एक all or none लो, या तो एक भी पॉइंट मत डालो या सारे डालो, ठीक है. अब सारे डालने मुश्किल हो जाते हैं, तो मेरा तो यही सजेशन रहता है कि एक भी ना डालो और जनरल लाइन जो अपनी बनाओ जैसे हम बना रहे हैं इंट्रो एंड कंक्लूजन. वी आर नॉट पुटिंग एनी पॉइंट, आइदर पुट नो पॉइंट और पुट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है. अब इसको देखो, लेट्स गो टू द एसे एंड सी. ओके, this is essay. We'll just go and read the intro and the conclusion. Short of money. Okay. So what is the intro? It is believed that children of poor families are better equipped in dealing with the challenges of adult life than children of rich upbringing. अब देखो,
ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है और पैराफ्रेजिंग भी दिख रही है. It is believed that children of poor families, children who grow up in families which are short of money, इसके लिए पैराफ्रेजिंग होगी. Children of poor families are better equipped to, better prepared with, better equipped in dealing with the challenges of adult life than children of rich upbringing. Than जो बच्चे हैं रिच अपब्रिंगिंग वाले. आई बिलीव दैट एडवर्सिटी इज ए गुड टीचर ऑफ लाइफ. मेरा मानना है कि गरीबी, बदहाली, एडवर्सिटी इज ए गुड टीचर ऑफ लाइफ. एंड सो चिल्ड्रन हु हैव सीन पॉवर्टी इन चाइल्डहुड आर मच बेटर एट फेसिंग एडवर्सिटीज इन एडल्टहुड. ठीक है. ओके. So ये आपको समझ आ गया. Introduction. I believe that adversity is a good teacher of life, and so children who have seen poverty in childhood are much better at facing adversities in adulthood. Conclusion देखो. To sum up, children who belong to families with weaker socio-economic background tend to be better prepared in dealing with adult life challenges as compared to those who come from affluent families. So सिर्फ वर्ड प्ले किया है. कंक्लूजन में भी वही बात लिखी है जो इंट्रोडक्शन में लिखी है. ये समझ आ रही है आपको? कुछ नया नहीं लिखना है आपको कंक्लूजन में. ओके. और ये क्वेश्चन आया था 12 अक्टूबर को पिछले साल 2020. और आजकल मैंने ये देखा है बहुत जल्दी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. सो यू माइट सी दिस क्वेश्चन इटसेल्फ. ओके. ये वैसे नेचर नर्चर में नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, पर ये मैंने उस कैटेगरी में डाल दिया क्योंकि रिच पोर को ऐसे कंपेयर करा हुआ था बच्चों को आपस में. ओके. देन नेक्स्ट आइडियाज वाली फाइल में दोबारा जाते हैं. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, if we go partial on this essay, I think so we have more ideas. अच्छा बताओ क्या बनाओगे? जैसे आपने कहा ना कि वो उनके पास काम करने की सब काम सीखना पड़ता है पूरे चिल्ड्रंस को. तो हम उसमें लिख सकते हैं कि अगर अमीर स्टूडेंट्स हैं वो भी सीख ले तो उनको भी प्रॉफिट होगा, उनको भी आप लिख सकते सेविंग हो. होगी. हाँ लिख सकते हो बेटे, बिल्कुल मानिक, यू कैन राइट. तो अब मेरे को ये बताओ कि आप फिर क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन कैसे बनाओगे? मैं बाकी बच्चों को भी ये क्वेरी आ रही होगी माइंड में. लेट अस गो इनटू इट. नो प्रॉब्लम्स. हाँ बताओ. आप लिख सकते हो डेफिनेटली, मैं मानती हूँ. यू कैन गो. आप वर्ड यूज करोगे पार्शियली एग्री? ये पहले तो ये बताओ मुझे. नो मैम. हाँ वो वर्ड कभी मत यूज करना. यस यस. उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल ठीक है. यस पार्शियली. फिर आप वाइल आप चाहते हो कंसेशन, है ना? आप ये चाहते हो कि कंसेशन दे दूं ताकि मैं उधर का भी एक पैरा बना दूं कि रिच फैमिलीज के बच्चों को ट्रेनिंग देके. ये मैंने पहले इस बुक में वो ऐसे जो लिखा था मैंने उसमें में लिखा हुआ है. मेरी पुराने एडिशन में वही ऐसे है कि while adversity is a good teacher of life, I believe even rich parents can give proper training and education to their children to face the challenges of adult life. समझ गए? यही कहना चाहते हो ना आप? यस यस यस. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो ये आप बना सकते हो. आई थिंक सबको ये बात समझ आ रही है कि उसने क्या पॉइंट रेज करा है, उसको कैसे सपोर्ट करा है हमने. आप ऐसे भी ऐसे बना सकते हो किसी भी. फिर आपका पूरा ऐसे डिफरेंट हो जाएगा. फिर आपने कहना है कि जो पुअर फैमिलीज है उनमें तो यही वाले 4 पॉइंट्स डालोगे आप. 2 पैराज में डाल देना, 3 में नहीं डालना. एक्सपैंड कम कर लेना. ठीक है. और फिर एक पैरा बना दोगे कि जो रिच पेरेंट्स है वो बेस्ट एजुकेशन दे देंगे, फाइनेंसेस की एजुकेशन भी बेटर दिला देंगे बच्चों को, तो उन बच्चों को भी बड़े होके प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. यही है ना मानिक? दैट वाज योर पॉइंट, राइट? yes ma'am. yes. Okay. Yes. So we go to the next lecture. हाँ. We have to go 70 or 30 ना? नहीं 70-30 वर्ड मत यूज करो. 70-30 नहीं होता. नहीं. हाँ मतलब मैं एक पैरा वो बना दो, 2 पैरे बना दो, बात खत्म. यस वो ही कह रहा था. बच्चे आपको ये पता नहीं है मानिक, बच्चे ना जो नहीं लिखना वो इतनी जल्दी पिकअप करते हैं, वो 70-30 कराएंगे इंट्रोडक्शन में. ओके. आप ऐसे वर्ड्स मत यूज करो जो मुझे नहीं लिखवाने हैं. बिल्कुल ठीक है. ओके मैम. सॉरी. अच्छा चलो आगे चलते हैं.
This essay also has come first time, ये आया है अभी पिछले साल, ये जब से कोविड-19 सिचुएशन में ऐसे शुरू हुए आने, पेपर शुरू है, उनमें ही आया हुआ है. तो ये भी ऐसे हमारी बुक में है. Some are of the opinion that people are naturally born as good leaders, while others feel that leadership skills can be learned. Discuss both views and give your own opinion. अब ये discuss ऐसे आ गया. Some are of the opinion, some people are of the opinion that people are naturally born as good leaders. वो कहते हैं कि जो कई लोग कहते हैं कि जो कुछ लोग हैं वो naturally good leaders हैं, they are born as good leaders, और बाकी लोग कहते हैं कि जो leadership skills हैं वो सीखी जा सकती हैं. Discuss both views and give your opinion. ठीक है, अब इसमें points करने हैं. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, here my question is that here the question in question there is discuss both views and give your opinion. So we would give our opinion in the introduction, and if the question would be discuss both views only, then also we have to give our opinion. Aman, I'm very happy you asked this question क्योंकि मैंने इसको overlook कर दिया था. ये बताना, मैं अपना ओपिनियन क्यों दिलवाती हूँ, मैं उसका रीजन आपको बताने लगी हूँ. Why do I say कि अपना ओपिनियन दो. ठीक है, डिस्कस ऐसे में जरूरत नहीं होती है अपना ओपिनियन देने की इंट्रोडक्शन में, पर मैं क्यों कहती हूँ क्योंकि 2-3 साल पहले ना आइल्स के बैंड डिस्क्रिप्टर्स मॉडिफाई हुए हैं, चेंज हुए हैं, और उसमें 7 बैंड की रिक्वायरमेंट में लिख दिया द कैंडिडेट शुड टेक अ स्टैंड होना चाहिए इंट्रो में. अब अगर आप वहां पे छोड़ दोगे ना दिस एसे विल डिस्कस बोथ व्यूज एंड आई विल गिव माय ओपिनियन इन द एंड, कई बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, वो स्टैंड नहीं होगा. समझ गए? ओके मैम. हाँ, तो चाहे नहीं लिखा हो चाहे लिखा हो, एक ओपिनियन की लाइन बना दो अपनी आफ्टर राइटिंग दैट इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ व्यूज. ठीक है, ये डिस्कस बोथ व्यूज वाले ऐसे में पर्टिकुलरली मैम आप बात कर रहे हैं. बाकी हाँ, बाकी सब में तो वैसे ही अपनी ओपिनियन देनी है, स्टैंड लेना ही लेना है, पर डिस्कस में स्टैंड नॉर्मली नहीं लेना होता था, इसलिए मैं कहती हूँ कि डिस्कस में भी अपना स्टैंड ले लो, ओपिनियन दे दो. ठीक है. अब एक चीज मुझको पूछनी है मैम कि इसके अलावा जैसे आपके ओपिनियन ऐसे है या फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे है इस तरीके की, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमने दो ऐसे पहले करे, सो इन दैट do you need to take your stand or do you need to write that I believe in the introduction? Yes. Introduction. देखो, you have to take your stand, पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे में आप लिखोगे there are many reasons leading to this situation, but many steps can be taken to mitigate the problem. ये आपका स्टैंड होगा कि स्टेप्स लिए जा सकते हैं, रीजंस है. वो थीसिस स्टेटमेंट वही है, वो स्टैंड वाली स्टेटमेंट है. हर ऐसे में आपके ऐसे स्टेटमेंट आएगी जिसमें आपने स्टैंड ले लिया है कि बड़े कारण है पर बड़े स्टेप्स लिए जा सकते हैं. ठीक है, ऐसे. एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो डिस्कस बोथ साइड वाला ऐसे होता है उसमें हम मतलब अपना ओपिनियन ऐसे भी दे सकते हैं ना कि I am in the former view. I side with the former view या I side. Yes मैम, दे सकते हैं, वो भी स्टैंड हो गया ना. देखो, आपने पहले फॉर्मर व्यू स्टेट कर दी और साथ में लेटर व्यू स्टेट कर दी, फिर आपने लिखा कि इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ. ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे आई पर्सनली एम इन फेवर ऑफ द फॉर्मर व्यू या आई पर्सनली एम इन फेवर ऑफ द लेटर व्यू, तो वो आपका स्टैंड हो गया ना. ओके मैम. हाँ, ठीक है. चलो अब हम ये वाला ऐसे करें. इसमें है why do some people say that leaders are born with leadership skills. वो लोग क्यों कहते हैं कि जो लीडर्स हैं उनमें उनके जीन्स में ही लीडरशिप के स्किल्स हैं, उन पर पैदा हुए लीडर्स. Leadership is based on personality traits which either a person possesses by birth or doesn't. वो ये कहते हैं कि लीडरशिप जो है ना वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे बेस्ड है, जो कि या तो किसी इंसान में जन्म से हैं या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, people who are naturally outgoing and extrovert get followers. जो नेचुरली आउटगोइंग है, एक्सट्रोवर्ट है, उनको अपने फॉलोअर्स मिल जाते हैं. ये ऐसे एग्जांपल दे दिया. अनदर ग्रेट लीडरशिप ट्रेट इज हैंडलिंग स्ट्रेस. तो सबसे एक और बड़ी लीडरशिप ट्रेट है कि वो कोई स्ट्रेस कैसे हैंडल करता है, which all the leaders face at one time or another, जो कि सब लीडर्स किसी ना किसी समय पे फेस करते हैं. People's genetic makeup influences their behavior and those who are naturally balanced and composed handle stress more easily. तो जो नेचुरली बैलेंस्ड है, कंपोज्ड है, वो स्ट्रेस को इजीली हैंडल कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू देम लीडरशिप कैन नॉट बी टॉट एंड पीपल हु डू नॉट पोजेस दीज नेचुरल ट्रेट्स फेल एट लीडरशिप. तो ये लोग इसलिए कहते हैं कि लीडरशिप जो है वो इनहेरेंट है, वो सिखाई नहीं जा सकती.
किसी में या तो ये ट्रेट्स हैं या नहीं है, वो ये बोलते हैं। ये एक पैरा बन जाएगा, आपको बनाना पड़ना है किसी और के व्यूज का लिख के, ठीक है। डिस्कस ऐसे में ऐसे लिखना पड़ता है, एक पैरा आपको बनाना पड़ेगा कि क्यों कुछ लोग सोचते हैं कि लीडरशिप इनबॉर्न है। दूसरा पैरा बनाओगे क्यों ये कहना गलत होगा कि लीडरशिप जो है डीएनए में है और लीडरशिप स्किल सिखाई जा सकती है। उसमें है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फॉर्मल स्पीकिंग आर द एसेंशियल ट्रेट्स ऑफ लीडर्स एंड कैन बी लर्न्ड थ्रू फॉर्मल ट्रेनिंग एंड ए वेल राउंडेड एजुकेशन। Creativity is another leadership skill that parents and good teachers can help children develop. फिर उसके बाद मैंने अपना व्यू दिया। I believe that any person can be groomed to master skills for becoming a good leader. It is a fact that children of many good leaders have failed as leaders, but those with no such background have risen to great heights as leaders. The Prime Minister of Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, and the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, have risen from humble beginnings and risen to great heights by acquiring such skills. तो और देखो हमारे बाकी कोई जैसे इंदिरा गांधी कितनी फेमस लीडर थी, कितने साल वो रही है पीएम, उसके बच्चों में कोई इस लेवल का लीडर बन नहीं पाया। और ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन पे तो जोक्स बने हुए हैं उसकी लीडरशिप स्किल्स पे, ठीक है। तो जीन्स में होते तो फिर उन लोगों में तो होने ही थे ना, ठीक है। तो ये आप पर नाम लिख के एग्जांपल्स, इसमें नरेंद्र मोदी का पॉजिटिव एग्जांपल्स नाम लिख के डाल दो, नेगेटिव नाम लिख के मत डालना, ठीक है। इंस्टेड ऑफ नरेंद्र मोदी वी कैन पुट द अडोल्फ हिटलर। हाँ, उसका डाल दो, हिटलर का डाल दो, ठीक है, जो आपको इजी लगे, जिसके बारे में आप लिख सको। देखो आपकी नॉलेज पे भी तो डिपेंड करता है ना। आम बच्चे हमारे जो हैं वो ये इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे एग्जांपल्स डालने के लिए, ठीक है, बिकॉज देन यू कैन राइट दिस एग्जांपल, पॉजिटिव एग्जांपल्स डाल सकते हो। और फिर ये ऐसे लेट अस गो टू दिस ऐसे इन द बुक आल्सो। 442 नंबर पे है ये ऐसे। ये इंद्रूप ने लिखा था अभी जब आया था पिछले साल। ओके, वैसे तो अंदर तो पॉइंट्स वही हैं जो मैंने वहां बोल दिए हैं। और इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन देख लो। इट इज बिलीव्ड बाय सम आर ऑफ द ओपिनियन। इसकी पैराफ्रेजिंग देखो। इट इज बिलीव्ड बाय सम that people are naturally born as good leaders, that people are born with certain characteristics that enable to become good leaders, great leaders, ठीक है। उसकी पैराफ्रेजिंग दिख रही है आपको। while others assert, while others feel that leadership skills are learnable, लर्न की जा सकती हैं। एबल होता है एक सफिक्स है जिसके पीछे लगाने से होता है कुछ किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूं दिस वर्क इज डूएबल, इसका क्या मतलब है? वर्क करा जा सकता है, ठीक है। इन दिस एसे बोथ व्यूज विल बी डिस्कस्ड। ये हो गया बोथ व्यूज वाला डिस्कस एसे का। पर्सनली आई बिलीव दैट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस कैन मेक बेटर लीडर्स than any innate ability. Innate is inherent by birth. Training and experience better inborn, ठीक है। तो ये वाला main reason why some people believe ये वाला पैरा है। On the other hand, some people think leadership skills are not in person's DNA and can be learned through experience, education and training. Experiences and circumstances prepare people to deal with success and failure. Good community, ये सारा उसका पैरा है। I believe that while there are many skills that can be inborn, leadership is not one of them. मेरा मानना है कि बहुत skills हैं जो inborn हो सकती हैं, पर leadership उनमें से एक नहीं है, ठीक है। फिर मैंने ये examples डाल दिए हैं, वो हो गया। Conclusion. In conclusion, there is no doubt that becoming a good leader is challenging, but this does not mean that only people with innate talent can become good leaders. वही बात दोबारा की है, थोड़े से words को घुमा के। तो अब आपको आई थिंक ये जो नेचर नर्चर एसेज है वो आपको समझ आ गए। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वंस यू हैव डिस्कस्ड ऑल। अच्छा, एक रह गया, लेट्स अस डू दिस आल्सो। ये छोड़ नहीं सकते हैं ये एक्चुअली ना। Can I say something? Yes. You teach very beautifully. Thank you. Yeah. Thank you, Arvina.
अच्छा, अब ये अब पता है क्या है, मेरा एम क्या होता है कि बच्चों के लिए इजी करना है, मतलब इट शुड बिकम इजी। आफ्टर द क्लास आपके मन में थोड़ी तसल्ली हो कि अच्छा इनमें से कोई ऐसे है तो लिख लेंगे ये वाला, और थोड़ा सा जो मेहनती बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, ठीक है। अब देखो, some people say that every human being can create art। अच्छा, बाई चांस ना जीटी की बुक में ये ऐसे मेरे से स्किप हो गया है, ये ऐसे जीटी में पास में आ चुका है और एकेडमिक में भी आया हुआ है, वो उस बुक में स्किप हो गया। सो आई वुड, जो जीटी के बच्चे हैं वो ये वाला ऐसे भी कर ले। आप तो ऐसे नेचर नर्चर का आपको कोई भी आ जाए आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो ये वाला ऐसे है, और शायद उनको एक बार ऐसे भी आया कि स्पोर्ट्समैन जो है बाय बर्थ होते हैं अच्छे, जो टॉप लिए, या इट कैन बी यू नो स्किल और एक्सपीरियंस से हो सकते हैं, तो अब आप हैंडल कर लोगे अगर स्पोर्ट्स भी आ गया तो। आई थिंक सो। डू यू थिंक सो? Yes, ma'am. Okay. Chalo. Yeah. Some people say that every human being can create art, example painting. Others think that only the people born with the ability can create art. Discuss both views and give your opinion. Why some people say that artistic ability is innate? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि जो artistic ability है वो innate है, inborn है. Some people showcase such extraordinary talents at such a young age that leaves little doubt that they had such abilities since birth. History is full of examples of child prodigies like Mozart, who outdid others who had years of practice. मतलब मोजार्ट के बारे में आपने सुना हुआ है? यस मैम, उसका म्यूजिक तो सुना था। हाँ, म्यूजिक कंपोजर था वो, उन लोगों से भी बेटर करता था जिनको सालों का एक्सपीरियंस था। मतलब ही वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब हम इसमें माइकल जैक्सन भी का एग्जांपल भी ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हो उसका भी। A young person who is unusually intelligent or skillful for their age, child prodigy, मतलब unusually intelligent or skillful, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते उस उम्र में कोई इतना कर सकता है। अब म्यूजिकल प्रोडिजी मोजार्ट, ये देखो मोजार्ट का इन्होंने सेंटेंस ही दे दिया। मोजार्ट वाज एन इन्फेंट प्रोडिजी कंपोजिंग म्यूजिक एट द एज ऑफ 4। वो 4 साल का म्यूजिक कंपोज कर सकता था। ये तो आप एग्जांपल अपने दूसरे हिस्से में भी डाल सकते हो, जिसमें हमने लता मंगेशकर की एग्जांपल डाली है। व्हाई डोंट यू पुट द एग्जांपल ऑफ मोजार्ट? ओके। और ये इसकी प्रोनाउंसिएशन ना मोजार्ट है, MOZART है, मोजार्ट नहीं है। पता नहीं यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन आएगी कि नहीं। मोजार्ट वर्ड है नहीं इसमें, वो गूगल करना पड़ेगा कि मोजार्ट है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ओके, देन ये फिर in addition, if everyone could create art, it would not be valued so highly and people would not call paintings masterpieces. Art is valued precisely because people feel that not everyone can make it. Art क्यों वैल्यू होता है? क्योंकि लोगों को पता है कि हर कोई नहीं बना सकता, हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए उसकी वैल्यू पड़ती है, ठीक है। Then why some people say that anyone can create art by practice and training? ये ऐसा भी है। वो कहते हैं कि अगर ये नहीं होता कि कोई भी सीखा जा सकता है तो फिर आर्ट स्कूल्स, आर्ट कॉलेजेस होते ही नहीं। फाइन आर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों है फाइन आर्ट्स? बिकॉज इसको सीख के कुछ लोग आर्टिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, दे साइड द डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट ओवर टाइम। अब ग्रेट आर्टिस्ट है कोई, उनकी आप शुरू के उनके करियर की कोई पेंटिंग देखो और उनके जब वो 20-30 साल उस करियर में फेमस हैं और उस टाइम की पेंटिंग देखो तो उनकी पुरानी पेंटिंग से उनकी अब वाली पेंटिंग्स में ज्यादा दम है या ज्यादा अच्छी है। तो इसका मतलब वो भी तो डेवलप हुए हैं ना विद प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग ओवर इयर्स, ठीक है। तो उनके अर्लियर वर्क्स को लैटर वर्क से कंपेयर करो, लैटर वर्क्स की ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। और लोग उनके कई पुराने कामों को देख के शायद उनको मानते ही ना कि वो आर्टिस्ट भी हैं, ये लिखा हुआ है। People might not even consider them some of these artists talented if they looked at their initial works. अब own view मैंने ये लिखा है कि to reach the recognizable top, ऐसी ऊंचाई पे पहुंचना जहां से आपकी पहचान हो जाए, उसमें दोनों चीजें चाहिए। उसमें गॉड गिफ्टेड भी चाहिए टैलेंट और उसमें हार्ड वर्क भी चाहिए, ठीक है। Even the most talented can lead a life of oblivion if they do not polish their art by continued practice. जो most talented है ना, वो भी गुमनामी की जिंदगी में जा सकते हैं। oblivion का मीनिंग भी करा देती हूँ।
ये आप वर्ड्स अपनी बना रहे हो अपनी नेचर नर्चर वोकैबुलरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Oblivion. Oblivion, a state in which you are not aware of what is happening, usually because you are unconscious. He often drinks. Okay, a state in which something has been forgotten. Yeah, obscurity. ठीक है, ये वाला मीनिंग है oblivion का जो मेरे उसमें फिट हो रहा है. And is no longer famous or important. So they can go into oblivion if they don't work hard. Even the most talented can go into oblivion if they don't work hard. ठीक है? Okay. Then why some people say that anyone can, ये हो गया, ये वाला मेरा, okay, if they do not. Conversely, anyone with a passion and determination can succeed in creating unique masterpieces of art. They might not be able to achieve the same level of success as someone who is extremely talented and hardworking, but they can still make a name for themselves. तो still वो अपने लिए एक जगह बना सकते हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं. तो I hope आज का नेचर नर्चर एसेस का मैंने टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है. एंड आपके मन के डीप डाउन इस ये जो ऐसे का टॉपिक है ना, नेचर वर्सेस नर्चर, ये थोड़ा इंटिमिडेटिंग है बच्चों के लिए, डरा देता है. अच्छा ये आ गया तो कैसे करेंगे, ओ माय गॉड ये तो बड़ा मुश्किल है. ऐसा नहीं लग रहा ना अब आपको? अगर नहीं लग रहा देन मेरी आज क्लास सक्सेसफुल है. ठीक है? ओके मैम. हाँ चलो, अब हम क्या करते हैं इसको ना, ये मैं एंड करती हूँ. और रीडिंग मैंने एक प्लान करी है, उसमें पैराग्राफ हेडिंग्स है. आई हैव टेकन द लास्ट पैसेज ऑफ कैम्ब्रिज 13 रीडिंग. उसमें पैराग्राफ हेडिंग्स है, समरी कंप्लीशन है. ठीक है मैम? यस मैम, एक्चुअली एक रिक्वेस्ट था. एक ऐसे है ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉपी समथिंग, वो ऐसे मैं आपको शेयर करूंगी मैम, वो भी एक डिस्कस करवा दीजिए प्लीज क्लास में. एक ले रहे कर दे उन्हें वकील ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ तुम बिल नहीं कर दे रहा हूं. Okay, human tendency. Copy one another. ओके ये वर्ड है नहीं मेरे में. Can you please repeat the topic? ये आपको मिल गया टॉपिक? दिख रही है मेरी फाइल? Yes, ma'am. अच्छा, so this is the topic you're asking? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The tendency of human beings to copy one another is shown in their popularity of fashions in clothing and other consumer goods. ये थोड़ा खराब सा टॉपिक है, ऐसे ही बहुत फिलोसॉफिकली समझने वाला. ऐसे कह रहा है कि जो हम लोग एक दूसरे को जो कॉपी करते हैं, वो हमारी जो ये टेंडेंसी है कि हमें एक दूसरे की रीस करनी है, जो कोई कर रहा है वो करना है. वो हमें कहाँ से पता चलता है कि जो पॉपुलैरिटी ऑफ फैशन है, कि लोग बहुत सेम फैशन फॉलो कर रहे हैं और कंज्यूमर गुड सेम यूज कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि हम एक दूसरे की रीस करते हैं, सब ह्यूमन बीइंग्स. तो मैंने इससे डिसएग्री करा है. मैंने कहा कि वो रीस करने की वजह से नहीं है पॉपुलैरिटी, मतलब सेम चीजें यूज करते, वो सेम चीजें यूज करते हैं बिकॉज उन चीजों में कुछ फायदा है. जैसे मैंने जीन्स की एग्जांपल दी है कि जीन्स कंफर्टेबल है तो सारी दुनिया जीन्स पहन के घूम रही है. अगर कॉपी करनी होती तो साड़ी पहनती थी लेडीज इंडिया में, तो सब साड़ी पहनते रहते ना. तो जीन्स पहनी एक बार, कंफर्टेबल लगी, पॉकेट में भी इजी है, चीपर ऑन द पॉकेट, आल्सो वेरी गुड ऑन द पॉकेट. 2 जीन्स खरीदो तो 2-4 साल निकल जाते हैं. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोलो मैम. इमिटेट मींस कॉपी. ओके मैम. इमिटेट मींस मिमिक, एप, कॉपी. ये 4 वर्ड्स हैं. मिमिक, MIMI. मैम इस यस रवि. मैम इस ऐसे में ग्लोबलाइजेशन का भी दे सकते हैं पॉइंट कि मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत आ चुकी हैं तो सेम प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं. तो सेम प्रोडक्ट्स है तो सेम प्रोडक्ट्स है इसलिए लोग खरीद रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनको एक दूसरे की रीस करनी है, क्योंकि ऑप्शंस ही नहीं है. हाँ ऑप्शंस नहीं है. तो ये ऐसे बनाओ ना, डिसएग्री करके ऐसे बना लो. समझ आ गई? किसने पूछा था? Yes, ma'am. गगन.
गगन, तो अब आपको समझ आ गया ये ऐसे कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। एक्चुअली मैंने लिखा था तो मैम ने बोला था थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, तो मैम ये टॉपिक कंफ्यूजिंग है वैसे, पता नहीं क्यों इनको इंग्लिश जज करनी है, सीधे सीधे टीवी के इंटरनेट के ऐसे एसेस दे के खत्म करें काम, है ना। पता नहीं क्यों ये ऐसे फिलोसॉफिकल से ऐसे और नेचर नर्चर और जीके भी डेवलप करा देते हैं बच्चों की, जनरल नॉलेज अच्छी डेवलप करा देते हैं। ठीक है, चलो वील गेट बैक इन 10 minutes, right? For the reading passage, reading passage होने वाला है आधे घंटे के अंदर अंदर, so we'll get back at 11:30. We'll start at 11:30. ठीक है, same link. ठीक है, चलो, okay, bye. Bye. Bye.